everybody. My name is Debolina Bhattacharjee. I welcome you all again to my YouTube channel, and today we will be discussing from nomenclature. Last class we did with the classification and very basic structure of like information about this haloalkanes and haloarenes. Hope everybody is doing fine. सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का बेसिक मतलब क्या है? नामकरण करना. ठीक है, जैसा मेरा नाम डिबोलिना है, तुम लोग का नाम राम, श्याम या फिर कुछ भी हो सकता है, सो वैसे ही सिमिलरली लाइक ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव दिस स्पेसिफिक नेम्स एंड गिविंग नेम्स टू देम इज व्हाट वी कॉल नॉमेनक्लेचर. खैर, इसके बारे में क्लास 11 में बहुत बड़ी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो हम लोग इसको डिस्कस अभी इतना डिटेल में नहीं करेंगे. विल जस्ट डू विद द बेसिक्स. ओके, जितना सा भी दिया हुआ है बुक में एनसीईआरटी में, we'll just do with the basics because NCERT is the Bible. Whatever is written, just gulp it out. But you need to understand. रट्टा नहीं मारना है. Okay. So nomenclature में the very first thing which we need to understand is halogen atom. It always comes at the prefix. Okay. It always comes at the prefix. मतलब first में it always comes at the prefix. Okay. Halogen atom जैसे कि आ गया हम लोग का sorry. फ्लोरो. ओके, फ्लोरो. इसके बाद फ्लोरो. ओके, ब्रोमो, आयोडो. एंड स्टूडेंट्स प्लीज ये सब को सिर्फ वीडियो में नहीं देखना है. ठीक है, अपने कॉपी में नोट डाउन भी करना है. मैं बार बार नहीं बोल सकती. ओके, मैं अभी तुम लोग को देख नहीं पा रही, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं चलता. आधे के ऊपर के स्टूडेंट्स तो कुछ नोट डाउन नहीं करते, ऐसे ही वीडियो चला के बैठे रहते हैं. ऐसा नहीं करना है. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रीफिक्स कैसे लगेगा. फॉर एग्जांपल क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. देन नेक्स्ट, if two halogen atoms are present, if two halogen atoms are present, then we should always follow the alphabetical order. That is alphabetical order के हिसाब से how and like in what order can we write? We can write it to be bromo, chloro, fluoro and iodo. ठीक है, so this is what we call the alphabetical order. Okay, it will only be followed when there are two halogen atom present in a single compound. Two halogen atom present in a single compound. ठीक है, single compound. Again I'm telling you people, you need to write these things down. I'm just explaining, मैं notes नहीं दे रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, third number point, what is it saying? It's saying if same halogen atoms are present in same carbon atom. अगर same halogen atoms carbon atoms में present हो, then what we should be doing? Then first we'll be doing the chain numbering. मतलब क्या है chain numbering? ठीक है, for example देखो, this is the carbon, this is the carbon. Okay, this is the halogen, this is the halogen. ना Br का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रोमो हम लोग बोलेंगे इसको. ठीक है, हम लोग बोलेंगे ब्रोमो, इसका मतलब है ब्रोमो. दो दो कार्बन है लेकिन एक ही कार्बन में दो हेलोजन लगे हुए हैं, एंड बोथ द टू हेलोजेंस आर सेम. दिस आर व्हाट ब्रोमो. ओके, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी नेमिंग देम एज, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग करना है 1 1 बोल के, और लिखना है 1,1 डाई ब्रोमो, डाई BROMO ब्रोमो, प्रोपेन PROPANE, डाई ब्रोमो प्रोपेन. ठीक है, the fourth number point. ठीक है, if two different halogen atom is attached to two different carbon atoms, then you need to see the numbering and choose the one that is giving the lowest number. ठीक है, very simple. if you first see the example, ऐसे समझ में आ जाएगा. See, these are the carbon atoms that are present, and this is your Br1 halogen, this is your another halogen. See, these are the carbon atoms and these are your like halogens. Now what you will be doing is that you need to write it this way. 1 2 3 4. second number numbering कैसे करना है? 1 2 3 4. ठीक है, now you add 1 plus 3 कितना आता है? 4. यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 4 plus 2 कितना आ रहा है? 6. So since 4 is smaller than 6, that is why this numbering will do. Okay, ये वाला numbering काम आएगा तब, ये वाला. We won't be taking this numbering. Okay, we'll be taking this one. Okay, so what will we write?
1 dash bromo 3 iodobutane, ठीक है, 3 iodobutane, राइट, क्लियर, बहुत इजी था ये वाला। ओके तो इतना ही था तुम्हारे इसमें नॉमेनक्लेचर में, देयर इज नथिंग मच। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इज नेचर ऑफ द सी एक्स बॉन्ड, यू नो, this is our next topic, that is nature of CX bond. I'm just explaining you all the NCERTs, huh? Because there are many students who are not actually going for engineering, who are not actually going for medical, but they just want to pursue some other lines. So science is a matter of interest, and definitely when you took science, so chemistry should be there. Okay, हाँ अलग बात है अगर किसी कोई ने मतलब एंथ्रोपोलॉजी लिया हो, I totally support that. Okay, it's a very beautiful subject. Alright, so now the next topic that we'll be dealing is nature of CX bond. क्या होता है यहाँ पे कि we'll be dealing with the nature of this carbon halogen bond. You know that halogens are what? These are group 17 people. These halogens are group 17 people, and these are electronegative in nature, very very negative, you know, so they are more negative than carbon. अभी इसको ऐसे समझना है, ठीक है, कि ना क्लास में दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे शैतान हैं, but what happens, that between these two students, one is very very naughty and the other one is like naughty but ठीक ठाक naughty, ठीक है. So what happens is that whenever these two are like sitting near to one another, okay, near to each other, then something goes wrong, then the teacher will say, hey you the naughty one, come over here. But now the thing is that here both the children are actually naughty, but teacher will consider the one who is more naughtier, like जो ज्यादा शैतान है इन दोनों में से, that one will be considered the guilty. Okay, वही वाला बच्चा कंसिडर्ड होगा गिल्टी कि भाई तुम ही हो वो वाला प्राणी जिसने गलती किया. तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है कुछ, कि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कार्बन और हेलोजन में, कि भाई कार्बन तो आ गया हम लोग का प्लस और ये वाला आ गया माइनस. क्यों? ऐसे होने से तो कार्बन इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है ना, हेलोजन इज ऑल्सो नेगेटिव. Then why are we giving carbon to be positive and halogen to be negative? That is because halogen is way more negative than carbon. That is why one is assumed positive and other one is assumed negative. Now what happens? Since the size of halogen atom increases as we go down the group in the periodic table, जैसे कि फ्लोरीन सबसे छोटा है और आयरन सबसे बड़ा है, तो इसीलिए यू नो दैट द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस. इफ दिस इज फ्लोरीन, then we will see that it is somewhat this fluorine, but if this is iodine, then it will be somewhat this. Okay, but I'm just giving you an example by drawing, मतलब distance बढ़ जाता है. Definitely you can see it through your naked eyes, possible नहीं है देखना, but this is what it is. तो अब जो ये वाला जो फंडा है बेसिकली, कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में मतलब बॉन्ड या फिर कुछ भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दिस टू अपर्स, सो व्हाट हैपेंस इज दैट दिस हेलोजन इट ट्राइज टू लाइक गेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम कार्बन. ओके, तो जब ये नेगेटिव चार्जेस गेन करने की कोशिश करता है, इन द मीन टाइम कार्बन बिकम्स पॉजिटिव. अब भाई तुम्हारे पास 10 नेगेटिव चार्ज है, तुमने किसी को अपना एक नेगेटिव चार्ज दे दिया, वो बंदा हो गया 11 नेगेटिव चार्ज का, तुम हो गए 9 नेगेटिव चार्ज के. नंबर ऑफ लाइक पॉजिटिव चार्जेस आर स्टिल 10, इजंट इट? तो क्या हुआ, लोग तुमको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे ना. सिंपल, दिमाग लगाओ, इट्स वेरी इजी, ठीक है. वही है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड और कुछ नहीं है. Alright, next, now the thing that we will be discussing is quite important, that is method of preparation. हम लोगों ने जो इतना टाइम देखा ये हेलो एल्केन्स एल्वेरिन्स नेचर, इन लोग का क्लासिफिकेशन, इसके बाद इन लोग का क्या आ गया वो नॉमेनक्लेचर. अभी क्या होगा, वी नीड टू सी कि भाई इन लोग को प्रिपेयर कैसे करते हैं. ऐसे तो नहीं बन सकते, तो प्रिपरेशन का कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा. सो नाउ आवर मैटर ऑफ डिस्कशन विल बी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, अगर लाइक तुम लोग कंफर्टेबल हो मेरे मीडियम ऑफ लैंग्वेज से, मेरे बोलने के लैंग्वेज से, तो लाइक आई बी कंटिन्यूइंग इट दिस वे.
या फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा हिंदी बोलूँ या फिर मैं पूरा इंग्लिश बोलूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं एक ही चीज़ को एक बार इंग्लिश में बोल रही हूँ, एक बार हिंदी में बोल रही हूँ, तो आशा करती हूँ तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड आई एम डेफिनेटली नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर की जो हमेशा स्टूडेंट को बोलती है कि यू नो लाइक तुमको बहुत डिसिप्लिन रहना है, ऑल दैट इज डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी, यू नो, बट जब भी पढ़ाई करोगे तो उसमें मज़ा ढूंढने की कोशिश करना, नहीं तो पढ़ाई बहुत बोरिंग होता है, राइट। एंड आई डेफिनेटली डोंट लाइक स्टूडेंट्स हु डोंट एंजॉय स्टडिंग। ओके, सो नाउ टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, तो नंबर 1, फ्रॉम एल्कोहल्स। एकदम सिंपल है, जैसा एनसीईआरटी में है वैसा ही, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। देखो फ्रॉम एल्कोहल्स, इसमें क्या गया है कि एल्कोहल से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हेलोएरेन्स को। सो देखो एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलोएरेन्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स, दे आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स। क्यों? बिकॉज दे आर इजीली एसेसिबल ना, एकदम यहाँ वहाँ हम लोग को मिल जाता है। सो दैट इज वाई वी कैन प्रिपेयर हेलोएल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। रिमेंबर दिस आर नॉट दोज एल्कोहल्स which you can go and get from those shops and all that, ये वो वाला अल्कोहल नहीं है, वो सब अल्कोहल डीनेचर्ड अल्कोहल्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो वो सब अल्कोहल्स हमारे केमिस्ट्री में कोई काम का नहीं आता है, ठीक है। अल्कोहल्स ऐसा होना चाहिए जिसका कोई कलर ना हो, जिसका कोई स्मेल ना हो, जिसका कोई टेस्ट ना हो, राइट। तो वो है अल्कोहल। हाँ, तो देखो हेलोएल्केन्स best prepared from alcohol. Why? Because they are easily accessible. First point. Now what happens is that the hydroxyl group या फिर the OH group in an alcohol is replaced. This is replaced. Okay, this is replaced by what? Halogen. It is replaced by halogen when reaction with concentrated halogen acids. कब replace होता है? जब ये हम लोग concentrated halogen acids को use करते हैं, concentrated halogen acids को हम लोग use करते हैं। इसके बाद आ गया तुम्हारा phosphorus, हाँ, phosphorus halides, PHOSPHORUS, phosphorus halides, ठीक है, या फिर thionyl chloride और thionyl chloride, okay, fine. So what happens is that among them this ये वाला सबसे important है, thionyl chloride is preferred the most. Why? Because द प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी बाई प्रोडक्ट होते हैं ना इसके, वो मतलब गैस की तरह उड़ जाते हैं, दे आर एस्केपेबल गैसेस। ओके, सो दे विल लाइक गो हियर एंड देयर एंड द मेन प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग विल बी कम्प्लीटली प्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें, इट्स कम्प्लीटली प्योर, नथिंग, यू डोंट हैव टू गो फॉर यू नो करेक्शंस एंड ऑल दैट कि भाई इसका प्यूरिफिकेशन करवाना है, इसका वो कुछ भी नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी प्योर। ओके, इफ यू टेक दिस एग्जाम्पल इन टू कंसिडरेशन यू विल सी ROH SO Cl2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो OH ग्रुप है, रिमेंबर दिस OH ग्रुप, ओके, सो ये वाला OH ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेगा इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिप्लेस्ड हो गया ना, रिप्लेस्ड हो गया यहाँ पे। देन व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो रिमेनिंग जो हमारे पास जो और एक जो Cl था, एक Cl तो यहाँ पे चला गया, ठीक है, एक Cl इसके साथ चला गया और एक Cl तो यहाँ पे रह गया ना, वो Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जाके मिलके HCl बना देगा। क्लियर, फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इट्स वेरी इजी। अब तुम इस वाले हाइड्रोजन को भी ले सकते हो, ये वाला हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ चला गया और HCl बना दिया, ठीक है ना। ना अभी जो ये जो SO जो है, ये जो SO जो है और यहाँ भी ये जो ऑक्सीजन जो है, ये क्या होगा, SO2 बना देगा। देखा, इट्स सो सिंपल। रिएक्शन के प्रोडक्ट्स याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर तुम्हारे पास इस चीज़ का ज्ञान हो तो। RCl इज योर ब्रह्मास्त्र। ओके, सो इसको याद रखना है, तो क्या करोगे, इसके लिए रिएक्शन का ट्रिक्स समझना पड़ेगा, कैसे करके याद रखना है इसको। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग ROH प्लस SOCl2, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, पहले ही हम लोग बना लेंगे हमारे लिए RCl, ठीक है, हो गया RCl। अभी यहाँ से क्या हुआ, ये वाला Cl और ये वाला R चला गया,
वी आर लेफ्ट विथ 1Cl, राइट. ये वाला H इस Cl के साथ चला जाएगा, HCl बना देगा. ठीक है. देन व्हाट वी विल डू, ग्रीन पेन लेती हूँ मैं. SO जो है ये O के साथ मिलके क्या बना देगा, SO2 बना देगा. ठीक है. सो सी दिस इज सो इजी. ठीक है. लेकिन among so many reactions that you'll be getting, for example ROH plus HX in the presence of ZnCl2 क्या देगा तुमको, RxH2O. तो ये सब, इसके बाद आ गया ROH plus NaBr. I will just write the few ones so that no you will not get confused. I'll just be writing them. See, ROH plus HX, यहाँ पे आ जाएगा क्या, ZnCl2. ठीक है. यहाँ पे Rx plus H2O. Alright, next reaction will be ROH plus NaBr plus H2SO4. ठीक है. यहाँ पे आ गया क्या, RBr plus NaHSO4 plus H2O. ठीक है ना. तो this type of reactions are important. You need to understand, you need to go through. But the most important reaction among all this is this one, ये वाला, ये थाइनिल क्लोराइड वाला जो था. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज द प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग हियर, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है और ये वाला उड़ के चला जाएगा. सो व्हाट विल बी गेटिंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर प्रोडक्ट. लैब में जाने की जरूरत नहीं है साफ सफाई करने के लिए. ठीक है. ऑलराइट. द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विथ HX, okay, hydrogen halide, requires the pressure of catalysts ZnCl2. देखो, when we discussed this one, okay, when we discussed this one, here it states that if the reaction of primary and secondary alcohol, if it's a primary and secondary alcohol, okay, which is a primary or secondary alcohol, then when this primary or secondary alcohol, you know, like reacts with this HX, हाँ, तब क्या होगा, इसको चाहिए एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस. ओके, ZnCl2. नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट. ओके, बहुत घातक क्वेश्चन है. आधे के ऊपर स्टूडेंट्स तो भूल ही जाते हैं. जो लोग मेरे क्लासेस में आते हैं वो तो बोलते हैं मैम याद नहीं आ रहा है कैटलिस्ट क्या होता है. ठीक है. बट लेट मी टेल यू कि कैटलिस्ट एक ऐसा यू नो लाइक वस्तु है, ऑलराइट, जो तुम्हारे रिएक्शन को फास्ट कर देगा बट खुद कभी पार्ट ही नहीं लेगा रिएक्शन में. अभी के लिए तो मतलब इतना ही समझ लो. हाँ, डिग्री में और थोड़ा सा नॉलेज है. एक कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्लो करता है और एक कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है. फिलहाल हम लोग अभी फास्ट वाले कैटलिस्ट की बात करें तो ZnCl2 खुद कभी यूज नहीं होने वाला है रिएक्शन में, लेकिन वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा. यू सी, इफ यू सी दिस रिएक्शन वेरी क्लोजली देन यू विल अंडरस्टैंड कि द रिएक्शन इज एंटायरली बैलेंस्ड. कैसे, देखो R आ गया यहाँ पे और क्या आ गया यहाँ पे, तुम्हारा X आ गया. ठीक है ना. तो RX चला गया, बचा के H2O. ये देखो H2O. ठीक है, देखा, RX H2O, सिंपल बात है. तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए जब हम लोग इन लोगों को HX के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, देन a catalyst is very important. And what is that catalyst? In this case it's ZnCl2. okay. Now with tertiary alcohols, primary secondary का तो हो गया, but now with tertiary alcohols, okay, the reaction is conducted by simply shaking it with concentrated hydrochloric acid. टर्शरी अल्कोहल के साथ कोई ट्रीट करवाने की जरूरत नहीं है, बस डालो एक टेस्ट ट्यूब में, ऐसे करके शेक कर दो, बस एकदम खत्म. ठीक है. सो there is only one condition, that is this entire reaction should happen in your room temperature. ना ही कि बहुत ठंडे में, ना ही कि बहुत गर्मी में, but it should be your room temperature. ठीक है. You know, whenever I see in question paper, there is this type of question that comes, you know, the order of reactivity of alcohols with the given halo acid is 3 degree, 2 degree, 1 degree. ठीक है. यू नीड टू रिमेंबर दिस वन की द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स यही वाला है. जब एल्कोहल से रिएक्ट करना है तो वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. डिड यू गेट इट? Okay. Then a method described are not applicable for preparation of aryl halides. अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, जितना भी यहाँ पे देखो, कोई भी रिंग शेप स्ट्रक्चर नहीं है. रिंग शेप स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट. व्हाई? क्योंकि ये सब मेथड्स हम लोग यूज करते ही नहीं है एराइल हैलाइड्स प्रिपरेशन के लिए. यू नो व्हाई?
There is this Y. That's because the carbon oxygen bond in phenols has a partial double bond character, and we know that to break the double bond character, it's like slightly difficult. Why it is difficult? Because then it has got one sigma bond and one pi bond. Okay, so it becomes quite difficult to break double bond than single bond. Okay, so यहाँ पे खत्म होता है हम लोगों का अल्कोहल से प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. अभी सेकेंड वाले टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वी कैन प्रिपेयर दैम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. ओके, जो कि हम लोगों ने पहले भी बताया था. हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या था? जो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स देते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर 2. ओके, नंबर 2 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. ओके, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. ओके, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. ये रहा हाइड्रोकार्बन्स हो गया. नाउ इसके अंदर में हम लोग आते हैं टॉपिक में बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन. बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन? इसका मतलब क्या होता है कि लाइक व्हेन एल्केन इज irradiated with sunlight, okay, एंड हेलोजन. जब हम लोग एल्कीन को इरेडिएट करते हैं सनलाइट और हेलोजन के प्रेजेंस में, तब क्या होता है? कुछ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लाइक एल्कीन के होते रहते हैं. सम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते रहते हैं एल्केन के. एंड दिस रिएक्शन, ओके, दिस रिएक्शन मिक्सचर ऑफ एलोएल्केन्स आर प्रोड्यूस. इट इज नॉट दैट कि सिर्फ एक ही एलोएल्केन प्रोड्यूस हुआ, बट देयर इज अ मिक्सचर ऑफ एलोएल्केन्स that gets produced. Okay, if we write the reaction, okay, it can be something like this. Okay, for example, 2Is H3C CH3 plus Cl2. ठीक है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा HNu and sunlight irradiated in presence of sunlight and halogen. क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे? mixture of haloalkanes. Okay, ठीक है. So this is the mixture of what? Haloalkanes. Okay, now in our book mechanism for this thing is also given. Okay, mechanism भी है इसका. तो what is this mechanism? Okay, mechanism of what? Mechanism of free radical, okay, free radical substitution. mechanism of free radical substitution. ठीक है. so first step that will go to is initiation, मतलब start करना. okay, initiate नहीं होने से हम लोग कैसे करेंगे? so initiation. okay, we're starting initiation. okay, initiation में what are we getting? we're getting this is Cl2, okay, HNu और ये और ये. ठीक है. now these are what are this? these are free radicals. what are this? these are free radicals. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. free radical, don't call it ion. all right, ऐसा होने से आयन होगा. ठीक है, एंड ऐसा डॉट आने से फ्री रेडिकल होगा. डोंट गेट कंफ्यूज. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. नाउ पहले ही स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? इनिशिएशन में V2 क्लोरीन, दैट इज अ हैलोजन, एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ HNu we made them radicals. okay, नंबर 2 में क्या आ रहा है हम लोगों का? नंबर 2 में दिस इज चेन प्रोग्रेशन. ओके, chain progression, right? now what happens in chain progression? We will be now taking a hydrogen carbon compound. that is what? a हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. ठीक है, तो हम लोग ले रहे हैं एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. फॉर एग्जांपल वी टूक दिस वन CH3 और इसके साथ हम लोगों ने रेडिकल को मिला दिया क्लोरीन का. अब क्या होगा यहाँ पे? अब ये हो जाएगा कि ये क्लोरीन जाके इस कार्बन पे अटैच्ड होने की कोशिश करेगा.
right? So now this chlorine got attached to this CH3 carbon, and then CH3 carbon is happy, got whatever it wanted, but अब क्या हो गया, CH3 का radical बन गया, right? So CH3 radical has been formed. Now this thing is what, since free radicals are highly reactive, so it will break the single bonds, and then this process will continue and continue and continue. Like for example, अगर हम लोग और एक लेते हैं again, अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या देखेंगे कि CH3 ये वाला आ गया, अभी क्लोरीन तो हवा में बहुत है, सो क्लोरीन ऐसा रह गया, क्या हुआ कि ये वाले CH3 ने इसके साथ ग्रुप बना लिया, ठीक है, तो CH3Cl प्लस, अब क्या हो जाएगा कि फिर से क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बन जाएगा. सो लाइक दिस वे this process will continue, but there will be a time when this process needs to end. अब वो वाला टाइम कौन सा आएगा, वो आएगा तुम्हारा थर्ड नंबर पॉइंट में, दैट इज टर्मिनेशन. ठीक है, टर्मिनेशन का मतलब हम लोग को पता है, समथिंग दैट नीड्स टू फिनिश समथिंग. इफ यू टर्मिनेट मतलब हम लोगों ने खत्म कर दिया, वी हैव एंडेड इट. ओके, सो नाउ इफ वी नीड टू एंड दिस प्रोसेस, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक टू फ्री रेडिकल मीट. कैसे, फॉर एग्जाम्पल, now in the air there are so many chlorine radicals, right, moving here and there. We are making this two chlorine radical meet, it became Cl2. We are making two this one CH3 meet, it is becoming CH3. We are making one Cl radical and one CH3 radical meet, what are we getting? CH3Cl. No, ऐसे करके like this process will continue, and then after some time the process will terminate. Alright, so depending on the concentration of the halogen atom, di-trihalides can be produced. Okay, मतलब कितना concentration है तुम्हारे halogen atom का, उसके ऊपर depend करेगा कि हम लोग di-trihalides बना सकते हैं कि नहीं. For example, you see, for example, we are having this CH4, ठीक है, and then we are having Br2, and this is this H nu. Then if this is dilute, okay, if this is dilute in condition, ठीक है, तब क्या होगा, CH3Br, simple. But if it is concentrated, then what will we be getting? If it is concentrated, then we'll be getting it to be this way. Okay, and अगर बहुत ज़्यादा concentration हुआ तो CH और तुम्हारा 3Br, simple as that. So it is not a favorable reaction. हम लोग generally इसको favor नहीं करते हैं. We don't generally favor it. One more thing. If we again look, क्या हो जाएगा कि for example we are having CH3, CH2, CH3, और यहाँ पे आ गया Cl2. Okay, and this is H nu. क्या होगा यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, see earlier when we took cases ना, there were this thing like ये एक ही कार्बन है या फिर दो ही कार्बन है, then we were not facing problems. But right now there are these 3 carbons, and now you need to take the decision कि कहाँ पे हम लोगों को Cl को बिठाना है. अगर हम लोग Cl को इस वाले बीच वाले कार्बन में बिठाते हैं तो एक प्रोडक्ट आएगा. डेफिनेटली इट्स अ सेकेंडरी वन, राइट, इट्स अ सेकेंडरी कंपाउंड. दूसरे वाले में हम लोग क्या करते हैं कि चलो कार्बन को CH2 यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे वी आर मेकिंग इट Cl and then CH2 and CH3, ठीक है. Now what we'll do, we will be making this as primary. Now among these two products, both are correct. Okay, you cannot say that this is one is right, another one is wrong, but one product is major, another one is minor. All right, now we will consider this one is a major product. Okay, this is a major product. ये 2 degree it's a major product and 1 degree is a minor product. This is the major product, ठीक है ना, this is the major product and this is the minor product. Very simple.
Okay, now next is by electrophilic substitution reaction. Okay, next is what? It's electrophilic substitution reaction. Number B, electrophilic substitution रिएक्शन. नाम सुन के तो लग रहा है ना कुछ इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना एंड ऑल दैट. सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी हम लोग को थोड़ा बहुत पता है, सब्स्टिट्यूट करना, किसी के बदले किसी को लाना, सब्स्टिट्यूट करना, राइट. तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे सब्स्टिट्यूट या फिर इलेक्ट्रोफाइल से ऐसा कुछ होगा, यू नो. तो हम लोग देखते हैं. Before going to this reaction, we need to understand what do we mean by toluene. Toluene का मतलब क्या होता है? Toluene is this kind of structure. हम लोग जो एमाइन करेंगे वहाँ पे हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे. But now you need to know that whenever we write it this way, okay, it's toluene. Okay, so toluene. हाँ, तो toluene whenever reacts with chlorine or bromine in the presence of iron. Okay, chlorine or bromine. So this X2 can be chlorine or can be what? Bromine. Huh? Can be chlorine, can be bromine. Alright. So, but iron should be present. Okay, iron should be present. Then aryl chloride and bromide respectively will be produced. अभी अगर तुमने क्लोरीन लिया है तो एराइल क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, अगर तुमने ब्रोमीन लिया है तो एराइल ब्रोमाइड प्रेजेंट मतलब फॉर्मेशन होगा. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अच्छा, वन मोर थिंग. इफ यू गिव इट हियर, हाँ, if you give it here, so product will be formed something like this. Okay, plus यहाँ पे ये वाला ऑर्थो एंड ये वाला पैरा. You know, there is nothing wrong in writing it here. If I would have written it here ना CH3, then what would have happened? तब मैं इसको कैसे लिखती? ऐसे. ये CH3 आ गया तो ये ऑर्थो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो हो जाता. एंड देन अगर हम लोग को पैरा ग्रुप लिखना था तो हम लोग यहाँ पे CH3 ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते ऑर्थो, सॉरी पैरा. So what is this? This is ortho-halotoluene. Ortho-halotoluene. This is para-halotoluene. ठीक है. So these are very easy products. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि पैरा आइसोमर्स, एक्चुअली वी प्रिफर पैरा आइसोमर्स मोर ओवर ऑर्थो आइसोमर्स. मेटो आइसोमर्स हालांकि फॉर्म नहीं हो पाते बिकॉज दे आर यू नो लाइक जनरली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्यों होते हैं? बिकॉज वहाँ पे मेटा पोजिशन में कोई भी दिस वन लाइक हेलोजन वेलोजन दे आर नॉट रेडी टू गो. ओके, now why they are not ready to go, I will just show you after a few moments. Just before now let us discuss this one. Okay, so what happens is that para isomers, they have got higher boiling point than ortho isomers. Okay, because their crystal lattice is you know of better symmetry. because देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला एकदम पूरा स्ट्रेट है ना, एकदम मज़ा का स्ट्रक्चर निकला है इन लोगों का. दिस इज वेरी स्ट्रेट, आराम से कहीं पे भी फिट हो सकता है. ऐसे ऐसे स्ट्रेट वन. बट वेन यू लुक दिस इन टू कंसिडरेशन, यहाँ पे ये वाला तो कुछ नहीं है, एकदम से ये वाला साइड में ऐसा करके निकल गया. सो द स्ट्रक्चर इज नॉट गुड. ओके, but in case of para, you know, the structure, the arrangement is very suitable. So you know it has got higher boiling point because of its you know symmetry. Okay, so reactions with iodine are reversible in nature and requires the presence of oxidizing agent. Okay, now they requires oxidizing agent. Why? So that it can oxidize the HI formed during iodination. Simple. But if we take the case of fluoro compounds, you know like they are not prepared using this method. हम लोग फ्लोरीन के कोई भी कंपाउंड को इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते. नो, इट्स अ बिग नो. ओके, बिकॉज वाई? बिकॉज बहुत छोटे होते हैं ना साइज में. you know like they are as well as they are you know like very highly reactive.
इसीलिए fluorine compounds are not produced. But yes, if you want to produce iodine compounds, then you should understand that iodine compounds are what, they're reversible in nature. They're reversible in nature, and they also need oxidizing agent. Okay, क्यों? क्योंकि उन लोग को HI को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, okay, during iodination. So this is as simple as this. Okay, now the thing that I just told you, like let you know later, what is that? That is, why do halogens gets attached to only the ortho and para position? क्यों मेटा पोजीशन में क्यों नहीं हेलोजेंस या फिर ऐसे कोई भी ग्रुप क्यों मेटा पोजीशंस में अटैच नहीं होते बेंजीन रिंग के? Like when we take benzene, okay, benzene is something like this. Okay, benzene is something like this. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दे देंगे, right? And this is the group. Okay, this is the group. Now what happens that यहाँ से ये वाला bond जाके यहाँ पे चला जाएगा. Alright, you just need to see the process. It's very easy. Okay, so यहाँ से ये वाला चला गया यहाँ पे. Then what happens? I'm making another benzene. ठीक है, अभी यहाँ पे और यहाँ पे bond रहेगा, and this is our group. ठीक है, ओके, टेकिंग द रेड पेन तो समझने में आसानी होगी. जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने का मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, राइट? तो ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आ गया, मतलब बॉन्ड खुल के यहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनना है, राइट? इट्स सो इजी. Negative charge and then here positive charge. Then what happens? This negative charge will now try to enter inside here. Okay, when this negative charge tries to enter inside here, then again this bond will try to break. Okay, when this try to breaks, okay, the structure now that forms is something like that. देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे तो फॉर्म हो गया, ये वाला बॉन्ड ओके फॉर्म हो गया, ये तो हम लोग का ग्रुप हो गया. नाउ सिंस दिस वांटेड टू ब्रेक, दिस बॉन्ड वांटेड टू ब्रेक ना, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी ब्रोक द बॉन्ड. ठीक है, वी ब्रोक द बॉन्ड. ऑलराइट, एंड नाउ एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. वी ब्रोक द बॉन्ड, बट दिस बॉन्ड विल नाउ again will try to enter here. ठीक है, clear? Again what we will do, we're making another benzene ring. ठीक है, यहाँ पे आ गया हम लोगों का ग्रुप, एंड अभी तो यहाँ पे हम लोग का बॉन्ड भी आ गया, और ये वाला जब अंदर चला गया, सो हियर वी गॉट दिस बॉन्ड. ओके, बट as this bond is formed, this bond needs to break, right? This bond need to break, जो कि हम लोग इसको क्या दिखा सकते हैं, ऐसे करके दिखा सकते हैं. Okay, so this needs to break, so we are writing it as E, and this is तो positive, ये तो positive लेगा रहेगा हमेशा. Okay, now this negative charge will now again try to enter inside. Okay, will now again try to enter what, inside. Okay, so now what we will get, okay, we'll be getting the final structure as this one, this one, this one, and this one group. See, these two structures are totally different. Have you seen them? These two structures are totally different, but both are benzenes. That is why we sometimes tend to write benzene this way, क्योंकि ये वाला बॉन्ड घूमते रहता है ना हमेशा, इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं. लेकिन हम लोग का मेन मुद्दा क्या था, क्यों हम लोग ऑर्थो और पैरा में ही हमेशा हेलोजन को बिठाते हैं, व्हाई नॉट मेटा? इजंट इट? इफ यू लुक वेरी केयरफुली, दिस इज अ ऑर्थो पोजीशन, राइट? दिस इज अ ऑर्थो पोजीशन, this is a para position, this is a ortho position. मेटा में कभी नहीं आ रहा है. That is why
That is why compounds even don't try to enter or gets attached to the meta position. All right, meta positions are almost like they almost go unnoticed, but कभी कभी ऐसा होता है कि मेटा पोजिशन में जाना पड़ता है जब ऑर्थो और पैरा में जगह ना हो तो, बट अगर जाना पड़े तो वो मैक्सिमम केसेस में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है. Did you get it? Okay. Saint-Mier's reaction will be our last topic today. Okay, then from next class we'll be doing with this from alkene वाला portion. इसके बाद physical properties आ जाएगा. ठीक है? So Saint-Mier's reaction. Remember one more thing, students. जितने भी naming reactions होते हैं, सारे naming reactions important होते हैं. All the naming reactions are very important. तो इसीलिए ये कोशिश करना है कि नेमिंग रिएक्शंस को हम लोग ना छोड़े. राइट, सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस वन, गिविंग द हेडिंग एज सी. ओके, सी, दिस इज Saint-Mier's. Saint-Mier's रिएक्शन. ठीक है, Saint-Mier's रिएक्शन. when alanine when aniline reacts with nitrous acid, temperature बताया गया है 0 to 10 degree Celsius temperature. Okay, so when aniline reacts with nitrous acid, okay, then what happens? Benzene diazonium halide is produced. जब एनिलीन नाइट्रोस एसिड में नाइट्रोस एसिड के साथ रिएक्ट करती है, टेम्परेचर कितना होता है 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, तब क्या फॉर्मेशन होता है? बेंजीन डाइजोनियम halide का formation होता है. And this benzene diazonium halide, my dear friends, this reacts with cuprous chloride or bromide, okay, which in turn result in the replacement of diazonium group by Cl or Br, and then finally aryl halide is produced. ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आता है, राइट? तो अभी देखो एक बार इसके रिएक्शंस को, ऐसे फट से समझ में आ जाएगा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्या बताया गया है? हम लोग एनिलीन लेते हैं. एनिलीन को 1 डिग्री एमाइन भी बोला जाता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन टोल्यूइन एंड एनिलीन. ओके, टोल्यूइन कैसा था दिखने में? ये देखो, टोल्यूइन था ऐसा. ठीक है, ये था टोल्यूइन जहाँ पे CH3 ग्रुप ऊपर में लगा हुआ था. अगर हम लोग अभी एनिलीन लिखने की कोशिश करते हैं, ये वाला क्या आ जाएगा? बेंजीन रिंग along with what? NH2. हम लोग एनिलीन को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमाइन बोलते हैं, राइट? तो जब 1 डिग्री एमाइन हमारे किसके साथ रिएक्ट करता है? ये रिएक्ट करता है नाइट्रोस एसिड के साथ. ओके, नाइट्रोस एसिड के साथ रिएक्ट करता है. सर्टेन टेम्परेचर कितना होता है? 0 to 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, इसके बाद क्या आता है? हम लोग का बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्मेशन होता है. अभी देखो हम लोग यहाँ पे देते हैं NaNO2 HX. हम लोग का टेम्परेचर आ गया सेल्सियस. ओके, तो क्या हम लोगों को मिला यहाँ पे? वी गॉट N2 पॉजिटिव X नेगेटिव. ठीक है, क्लियर? सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजीन डाइजोनियम halide. Benzene diazonium halide. Now this benzene diazonium halide will again further be treated with what? CuX2. यहाँ पे मतलब cuprous chloride या फिर bromide. So CuX2, this can be chloride or bromide, can be anything. Okay, so यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा अभी. तो हम लोग का ये वाला पोर्शन एंटायरली रिमूव हो जाएगा. ये वाला जो पोर्शन था ये रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? यहाँ पे ऐसे करके. ठीक है, ये वाला आ जाएगा X प्लस हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं? हम लोग का X का क्या होगा यहाँ पे? Cl या फिर Br. सो यही वाला है हम लोग का एनिलीन के साथ रिएक्शन व्हेन वी रिएक्ट इट विद नाइट्रोस एसिड एंड देयर इज दिस टेम्परेचर ऑफ 0 to 10 डिग्री सेल्सियस. एराइल हैलाइड इज प्रोड्यूस्ड. लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में बताया गया है. व्हाट अबाउट आयोडीन? इफ X is iodine,
इफेक्साइडिन, तब क्या होगा, if we take if we talk from this step, okay, we are taking in this one, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड ले लिया, N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग डायरेक्टली, this is I plus N2Cl, this is positive, this is negative, simple. इसका मतलब क्या पता चला हम लोगों को, जब हम लोग डाइजोनियम ग्रुप को आयोडीन से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तब हमें क्यूप्रस हैलाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती. व्हाट डू वी डू, वी सिंपली शेक द डाइजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड एंड देन द resultant product is produced. But if we take the case of fluorine, fluorine containing aryl halides cannot be made because fluorine sizes are very small, as well as they can escape here and there, या फिर कुछ दूसरा रिएक्शन कर जाएगा, उधर दिमाग घूम जाएगा साइंटिस्ट लोगों का, इसलिए उन लोगों ने बोला कि रिस्क नहीं लेना है. ठीक है, ओके गाइस, तो टुडे दिस इज आवर लास्ट टॉपिक. हाँ, विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट. ठीक है, चलो, बाय बाय.